Morning student, this is the class 9 subject social science and this is the chapter 2nd of geography and the topic is physical features of India and this is the lecture for student. Firstly we will recall previous lecture and in previous lecture we have studied about the 6 physical features of India and first Himalaya mountain, second northern plain, third Indian desert, fourth coastal plains, peninsula plateau and the island. And student, we have already discussed about formation of Himalaya and the formation of northern plain. And the student, northern plain area divided into 3 part: Punjab plain, Ganga plain and the Brahmaputra plain. And the northern plain area is 7 lakh square kilometer and total length is 2400 kilometer. And the student, northern plain area are very fertile area because due to availability of water, availability of fertile soil and favorable climate condition. So student, let's start. Today we will discuss about next feature. So let's start. And the first, today we will discuss about the Indian desert, second the coastal plains, and last we solve some question. That question I have assigned in previous lecture. Indian desert means the Thar desert, and the Thar desert is the largest desert in the India. And then coastal plain, and you know the total coastal area of India is 7516.6 kilometer. So student, let's start. Firstly we will read about the Indian desert. And firstly you see the map of India and you know there are 6 major physical division. Upper part, northern part is called Himalaya, or Himalaya have 3 ranges, 3 parallel ranges. Upper part is called Himadri, middle part is called Himachal, and the outer range of Himalaya is called Shivalik. Okay, and then this area is northern plain area, and northern plain area can be divided into 3 parts. First is Punjab plain, and the Punjab and the area northern plain area formed by 3 river system. Indus river system, Indus river flow from Tibet Mansarovar lake and enter into Jammu Kashmir and enter into Pakistan and Punjab in Pakistan. And then Ganga river, Ganga origin from Uttarakhand, and then he flow into UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal and drain into Bay of Bengal. And Brahmaputra river, Brahmaputra also it origin from Tibet, China, and it takes U-turn from Arunachal Pradesh. It enter in Assam and then it enter in Bangladesh, then drain into Bay of Bengal. This part is northern plain, and today we will discuss about the Great Indian Desert. In Great Indian Desert, and then we will learn about the coastal plain. Coastal plain area, ये जो बेटा आपका यहाँ जो आपका वेस्ट साइड में अरेबियन सी से के साथ जो टच कर रहा है इसको हम बोलते हैं कोस्टल, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के साथ जो एरिया ये टच कर रहा है इसको बोलते हैं हम आपका कोस्टल प्लेन। ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट और ये वाला जो पार्ट है ईस्टर्न कोस्ट कहा जाता है। तो और उसके बाद हमारी ये हमारा जो आपका सर्दन में जो ये आपका पार्ट है इसको बोलते हैं पेनिनसुला प्लेटू। इस वाले पार्ट को बोलते हैं पेनिनसुला प्लेटू। और आपके ये आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो दीज आर 6 physical division of India, and today we will discuss about Great Indian Desert and कोस्टल प्लेन। इंडियन डेजर्ट आप यहाँ देखिए बेटे, यहाँ अरावली रेंज है, अरावली रेंज है जो आपके राजस्थान में है। अरावली रेंज के बिल्कुल वेस्ट में, अरावली रेंज का ईस्ट पार्ट ये है, वेस्ट पार्ट ये है, नॉर्दर्न ये, सर्दर्न ये है। तो इसके बिल्कुल वेस्ट में आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। और डेजर्ट में आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड होती है और पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो ये तो है इंडियन डेजर्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्टर्न। आप यहाँ देखिए बेटा, यहाँ अरेबियन सी के यहाँ वेस्ट पार्ट में जो है यहाँ वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन, और ये वेस्ट में है तो इस वाले को कहा जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और यहाँ ईस्टर्न घाट है,
बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो स्पेस है उसको कहा जाता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द इंडियन डेजर्ट, it lies toward the western margin of the Aravalli Hills. It is situated in the west part of the Aravalli Hills and undulating sandy plains covered with sand dunes. Sandy plains, undulating means no plain area found in desert, and undulating means up and down sand dunes are found in Rajasthan in Indian desert and covered with sand dunes. Sand dunes, you know, sand dunes, it is a hill of sands. It is a hill of sands of loose soil built by wind and or the flow of water, and dunes occur in different size and different shapes and formed by interaction with the flow of air or water. Sand dunes का मतलब बेटा जब क्या होती है, सैंड ड्यून जैसे है कि मिट्टी के टीले, राजस्थान में बहुत ज़्यादा क्या होती है सैंड होती है, और वहाँ पे जब क्या होती हैं हवा की वजह से जो मिट्टी क्या होती है, जब मिट्टी वहाँ पे क्या होती है हवा के साथ जाती है, और वहाँ पे उठने के बाद वहाँ पे क्या है वो जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। बहुत सारी वहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। अनडल्टिंग का मतलब है जो सैंडी प्लेन्स है वो क्या फ्लैट ना होकर वहाँ पे क्या है काफ़ी ज़्यादा उसमें अप एंड डाउन पाए जाते हैं, यानी एरिया फर्टाइल नहीं है, एरिया यानी कि स्मूथ नहीं है, उस वाले को बोलते हैं अनडल्टिंग। लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर, और यहाँ जो बारिश होती है वो भी क्या है काफ़ी कम होती है, लो रेनफॉल है। एंड एरिड क्लाइमेट, एंड द रीजन हैज़ हार्श क्लाइमेट विद लिटल रेनफॉल, एंड द एरिया इज़ वेरी एरिड एंड सेमी एरिड, एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर it has poor vegetation, only cactus can grow in Rajasthan. ओके, एक तो वहाँ पे बारिश कम होती है और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से जो क्लाइमेट है वो क्या है एरिड है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है शॉर्टेज ऑफ वाटर है, और वहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी कम होती है। रेनफॉल नहीं होने की वजह से मिट्टी भी क्या है, मिट्टी में जो टेम्परेचर वो भी क्या है काफ़ी हाई होता है, और जिसकी वजह से जो वेजिटेशन वो भी क्या है काफ़ी कम है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, मीन्स रिवर्स कैन सी ओनली इन रेनी सीजन, बिकॉज वहाँ पे जो एक तो वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो क्या होती हैं बहुत कम है, और जो रिवर्स हैं जो भी हैं वो क्या है केवल आपको बारिश के दिनों में ही नज़र आती हैं, क्योंकि वैसे अगर जो नदियाँ हैं वो क्या होती हैं सूख जाती हैं वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होने की वजह से, और वहाँ जो पानी है वो बहुत कम रह जाता है। रिवर्स क्या है अपने आप ही क्या होते हैं सूख जाती है, पानी बहुत कम हो जाता है। तो जो वहाँ पे जो रिवर्स है बहती हुई जो रिवर्स हैं वो जो नदियाँ हैं वो केवल आपको रेनी सीजन में ही नज़र आती हैं। एंड लार्ज रिवर लूनी रिवर, एंड द स्टूडेंट लार्ज जो मेन जो रिवर है राजस्थान की जो मेन रिवर डेजर्ट की जो मेन रिवर है वो है लूनी रिवर। ओके, एंड द बार्चन्स दे आर क्रिस्शियन शेप मीन्स सेमी सर्कल शेप सैंड ड्यून्स। It is the shape of sand dunes, and it is the shape of semicircle of sand dunes covering large area of Rajasthan Thar desert. स्टूडेंट बार्चन्स का मतलब होता है कि जैसे वहाँ जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं बनते हैं तो जो उनकी शेप होती है वो क्या होती है सेमी सर्कल की तरह होती है, क्योंकि जो हवा चलती है तो हवा चलने की वजह से वो अपने साथ बहुत सारे सेंडिमेंट्स क्या है फ्लो करके ले जाती है और कहीं और जाके जाती है। उसके बाद जो वहाँ जो शेप रह जाती है जो ड्यून्स होते हैं, यानी जो मिट्टी के जो वहाँ पे मिट्टी के टीले होते हैं उनकी जो शेप होती है वो सेमी एरिड होती है, एंड द बार्चन्स कवर लार्जर एरिया ऑफ राजस्थान, एंड राजस्थान मीन थार डेजर्ट, एंड बट लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। और जो बार्चन्स हैं वो मोस्टली आपके इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या होते हैं अपीयर किए जाते हैं, वहाँ पे देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये क्या है उस बॉर्डर पे देखने को मिलते हैं बार्चन्स। तो स्टूडेंट दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन डेजर्ट है बेटा, वो आपके अरावली रेंज के बिल्कुल वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। एक तो राजस्थान में क्या होती है जहाँ थार डेजर्ट है वहाँ पे क्या होती है बारिश 150 मिलीमीटर से काफ़ी कम होती हैं,
कम ऑन, एरिड क्लाइमेट है, पुअर वेजिटेशन है, और वहाँ पे कोई रिवर भी क्या है आपकी केवल रेनी सीजन में अपीयर होती हैं, और वहाँ जो मेन रिवर है उसे कहते हैं लूनी रिवर। उसके बाद बार्चन्स है, जो सेमी सर्कल जो शेप होती है वहाँ पे उसको कहा जाता है, आप सेमी सर्कल जो शेप्स को कहते हैं बार्चन्स, और ये मोस्टली ये आपके इंडो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उस पर क्या होते हैं आपको नजर आते हैं। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड फीचर, एंड द सेकंड इज द कोस्टल प्लेन। The Peninsula Plateau, stretch of narrow coastal strip which runs along the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west. Coastal plain, it is a narrow coastal strip between Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. Student, अभी आपको पहले उसमें भी दिखाया था, मैप में भी बताया था कि आपका क्या है, अरेबियन सी आपका वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल वेस्ट ईस्ट में। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो भी स्पेस होता है उसे कहा जाता है कोस्टल प्लेन एरिया, ठीक है। और जो आपको बताया कि कोस्टल जो लाइन है अपने इंडिया की, जो कोस्टल लाइन है वो क्या है, गुजरात स्टेट की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, और जो कोस्टल एरिया है टोटल वो है 7516.6 किलोमीटर। और जो आपका वेस्ट पार्ट में जो आता है, वेस्ट डायरेक्शन में जो आपका कोस्टल प्लेन एरिया आता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो ईस्ट में आता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से लेके वेस्ट में अरेबियन सी तक जो भी पार्ट आपका है उसे कहा जाता है कोस्टल प्लेन एरिया। तो नेक्स्ट, फर्स्ट coastal plain area divided into two parts, western coastal plain and eastern coastal plain. Western coastal plain, it lies between the Western Ghat and the Arabian Sea. You know, western part is situated in Arabian Sea and it is lie between the Western Ghat the Arabian Sea. यानी कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो आपको डिस्टेंस नजर आता है उसे कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड इट इज़ ए नैरो प्लेन यानी इसका डिस्टेंस क्या है, काफ़ी कम होता है, नैरो प्लेन है। विच स्ट्रेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बेटा वो गुजरात से लेके केरला तक वाले पार्ट को कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इसकी एवरेज विड्थ है वो है 50 to 80 किलोमीटर। एंड दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय लेस रिवर लाइक नर्मदा एंड तापी फॉर्मिंग एस्टुरीज। Narmada and Tapi are peninsular river. They originate from Madhya Pradesh and drain into Arabian Sea. नर्मदा तापी बेटा वहाँ जो रिवर्स है वो क्या करती हैं, मध्य प्रदेश से ओरिजिन होते हैं और ये फ्लो करती हैं, और फ्लो करती हुई ये क्या है आपकी अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। ड्रेन होने से पहले क्या बनाती, स्टोरीज मीन्स द वाइडर पार्ट ऑफ ए रिवर एट द प्लेस वेयर इट ज्वाइन द सी, यानी समुद्र में मिलने से पहले जो रिवर्स हैं इनकी जो शेप है वो क्या होती है, काफ़ी वाइड हो जाती है, यानी कोई शेप ना बन के क्या है फैल जाती है, उस वाले शेप को कहा जाता है स्टोरीज। और यहाँ ही वेस्टर्न पार्ट पे दो रिवर ऐसी हैं जो क्या बनाती, स्टोरीज बनाती हैं, और जो सारी रिवर हैं वो तो आपकी फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट। केवल यही ऐसी दो रिवर हैं जो फ्लो करती हैं ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, और ये दोनों जो रिवर हैं वो अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती हैं, और ये जब ड्रेनेज होती हैं तो स्टोरीज बनाती हैं। तो स्टूडेंट वेस्टर्न कोस्ट प्लेन पे जो मेन रिवर्स हैं वो नर्मदा एंड तापी हैं, और ये क्या है, ड्रेनेज होने से पहले स्टोरीज बनाती हैं। फर्स्टली यू सी द मैप ऑफ इंडिया एंड यू नो, देखिए बेटा यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है गुजरात से लेके केरला के पार्ट को हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और आपका यहाँ पे उड़ीसा से लेके तमिलनाडु वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और यहाँ पे भी देखिए बेटा, यहाँ वेस्टर्न घाट है और यहाँ अरेबियन सी, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, काफ़ी कम है, तो इसलिए इसे कहा था नैरो प्लेन। और ये वाला यहाँ ईस्टर्न घाट और इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए बोलते हैं इसको वाइडर बोलते हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट है अरेबियन सी इनके बीच में है ये, और इसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया, वेस्टर्न पार्ट को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया बेटा, कि जैसे आपका यहाँ पे मुंबई है, मुंबई टू गोवा, यानी मुंबई से लेके गोवा तक के पार्ट को नर्दर्न पार्ट कहा गया, और नर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण।
कोंकण, इसको नाम दिया गया कोंकण, मुंबई से लेके इसको नाम दिया गया कोंकण। एंड सेंट्रल पार्ट इज सिचुएटेड इन नियर बाय कर्नाटक एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, इस वाले पहाड़ को कहा जाता है कन्नड़ प्लेन। और केरल के पास जो कोस्टल एरिया उसको कहा था मालाबार कोस्ट। एंड तो स्टूडेंट यहाँ वेस्टर्न पार्ट के में तीन, इसको क्या है, इसमें 3 पार्ट्स किए गए हैं। और नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण कहा जाता है, मिडल पार्ट को, सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है कन्नड़, और आपका सदर्न पार्ट को, सदर्न जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है केरल के पास जो पार्ट उसको कहा था मालाबार कोस्ट। तो ये तो हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट में देखिए बेटा, ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपका तमिलनाडु से यहाँ तक आपका आंध्र प्रदेश तक जो भी पार्ट है उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल कोस्ट कहाँ सिचुएटेड है, ईस्ट में है, ईस्ट वाले पार्ट को कोरोमंडल। और आपका आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के बीच में जो भी आपका पार्ट आता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट, इसको बोलते हैं सदर्न पार्ट को नाम दिया गया कोरोमंडल कोस्ट। और आपका जो आपका नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकर, इसका जो नाम है यहाँ पे नॉर्दर्न सिरकर। ओके। और यहाँ आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में क्या है, चिल्का लेक है, जो आपकी क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी साल्टी लेक है। तो स्टूडेंट वेस्टर्न पार्ट में 3 सेक्शन है और ईस्टर्न पार्ट में 2 सेक्शंस हैं। देखिए वेस्टर्न कोस्ट प्लेन एंड द अपर पार्ट मीन्स नॉर्दर्न जो स्ट्रेच है उसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड कोंकण एंड इट इज लाई बिटवीन मुंबई टू गोवा। मुंबई और गोवा के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कोंकण। कन्नड़ प्लेन जो सेंटर में है, जो कर्नाटक के बिल्कुल क्या साइड में जो एरिया उसको बोलते हैं कन्नड़, क्योंकि वहाँ पे कर्नाटक में जो लैंग्वेज है कन्नड़, इसलिए इसको नाम दिया कन्नड़ प्लेन। एंड सदर्न में जो सदर्न यानी कि जो आपका केरल के पास जो पार्ट है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो स्टूडेंट दीज आर द फीचर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट प्लेन। एंड नेक्स्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। And the student, the plain is located between the Eastern Ghat and the coast of Bay of Bengal. It is wide and leveled plain with average width of 80 to 100 kilometer. एंड उसमें ईस्टर्न कोस्ट आपको बताया था कि ईस्टर्न घाट है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच वाला जो पार्ट है उस वाले पार्ट को कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो ये वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, काफ़ी वाइड होता है, लेवल्ड है, यानी इसमें ज़्यादा ये कॉन्टीन्यूस है, ज़्यादा इसमें क्या होते हैं डिफरेंसेस नहीं पाए जाते, लेवल्ड है। और जो उसकी एवरेज विड्थ है वो है आपकी 80 to 100 किलोमीटर। तो और ये जो है आपका मेनली बे ऑफ बंगाल के पार्ट वाले में है। और यहाँ पे आपको बताया था कि 2 आपके सेक्शंस हैं। देखिए कौन सेक्शन है, जो नॉर्दर्न जो आपका यहाँ जो पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार एंड सदर्न पार्ट को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आपका उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच में आता है, और आंध्र प्रदेश से लेके आपका जो तमिलनाडु वाला पार्ट उसको बोलते सदर्न पार्ट, और उसको नाम दिया गया कोरोमंडल कोस्ट। एंड ऑल मेजर पेनिनसुलर रिवर फॉर्म ए डेल्टा बाय मेकिंग द लैंड फर्टाइल सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। स्टूडेंट मेन पेनिनसुलर रिवर सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी drainage into Bay of Bengal and they formed a delta. Delta means it is a triangular shaped piece of land and formed at the mouth of a river where it meets the sea. यानी कि जब ये समुंदर से यानी कि क्या बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो रही होती है तो उससे पहले क्या बनाती है, एक शेप बनाती है। उस शेप को क्या, उसको वो शेप होती है ट्रायंगुलर शेप होती है, तो उसको कहा जाता है डेल्टा। तो जो आपकी ईस्टर्न पार्ट पे जो है रिवर्स हैं वो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो मेन रिवर है वो क्या करती हैं, ड्रेनेज होती हैं, तो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और वेस्टर्न कोस्ट पे जो हैं वो आपकी रिवर है जो क्या करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं और स्टूडीज बनाती हैं। और जो आपकी जो रिवर्स हैं और जो सारी रिवर हैं वो कहाँ जाती हैं, आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और जाने से पहले क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। एंड लेक चिल्का इज आल्सो लोकेटेड इन ईस्टर्न कोस्ट में आपका चिल्का लेक है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। और पूरे भारत में सबसे बड़ी जो साल्टी लेक है वो है चिल्का लेक है। कुछ लेक आपकी फ्रेश वाटर की होती हैं, कुछ आपकी सॉल्टी वाटर की होती हैं। तो ये जो लेक है वो आपके उड़ीसा में सिचुएटेड है
or it is the largest saltwater lake of India. So student, these are the feature of western coastal plain and eastern coastal plain. Western coastal plain have three section. First, northern part is called Konkan. Central part is called Kannad, and northern part is called, and the southern part is called Malabar coast. And the west and the eastern coastal plain have two section. Northern part is called Northern Sirkar, and the southern part is also called Coromandel coast. And Chilka Lake is situated in the eastern coast, and it is the largest saltwater lake of India. And student, today your homework solution: which river has the largest inhabited riverine island of India? And the answer is the Brahmaputra river. And the second, what are the features of northern plain of India? These plains have been formed by alluvial soil which have been deposited by the river system comprising the Ganga, Brahmaputra and the Indus and their tributaries. These plains spread over area of about 7 lakh square kilometer, and the length of the northern plain is 2400 kilometer, and it is a densely populated. Question number 3. What are Punjab plains and how are they formed? Answer. The western part of the northern plain is called Punjab plain, formed by the Indus and its tributaries, and the larger part of this plain lies in Pakistan. Next, how are riverine island formed? And answer is the rivers coming from northern mountain carry alluvium with them and do the depositional work in the lower course. Due to gentle slope, the velocity of river decrease, which results in the formation of riverine island. Why is northern plains most productive parts of India? And the answer is the northern part is the most productive part of India because of availability of water, fertile soil and favorable climate condition. So it is called productive part of India. Differences between Khadar and Bangar. Khadar means it is a new alluvium. It is very fertile. It does not contain the conker nodules, and it is found in the lower level in the plains, lower course in the plains. Means Khadar is a fertile and new soil, and it does not contain the conker nodules. And Bhangar means it is an old alluvium soil. It is less fertile and it contains the conker nodules, and it is found in the upper course of the river. So it is called Bhangar. It is less fertile and it is old alluvium soil. And student, today your homework is first question: which is the only river of Indian desert of Rajasthan? Second, what are the local names of western coastal plain? And question number 3, differentiate between western coastal plain and the eastern coastal plain. Where is Chilka Lake located? And question number 5, describe the 4 features of the Indian desert. And student, all questions done in your fair notebook, and keep learning and do map mark also. Okay student, thank you.